اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم السلام علیکم۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں حیدرآباد کی 2 ملکگیر شہرت کے حامل مہمانوں کی آمد، دفتر فکر و خبر میں بھی مذکورہ مہمانوں کی آمد۔ 5 کروڑ 26 لاکھ کی ڈکیتی، 1 ملزم گرفتار، بقیہ 9 کی تلاش۔ پھول لینے سے انکار پر ایئرپورٹ پر رابرٹ وڈرا سے بھڑ گئے گنیش جوشی، کہا جو گھوڑے کو مارتا ہے اس سے پھول کیا لینا۔ دگ وجے سنگھ کا پاریکر پر تیکھا حملہ، کہا پاکستان اس وقت جہنم نہیں تھا جب مودی وہاں گئے تھے۔ حلب میں جنگ سے متاثرہ بچوں کی روح فرسا تصویر جاری، شام میں قتل عام کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب میں تبلیغ، دعوت و ارشاد کے ماتحت مزید 32 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل کل دوپہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کئی کالجوں کے ایڈوائزر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب اور جناب منور الزما صاحب کی جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد میں آمد ہوئی ہے۔ اس موقع پر کانفرنس ہال میں منعقدہ پروگرام میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کہ آپ مستقبل کے علماء اور امام بنتے جا رہے ہیں جن پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مسجد کا امام بن جائے تو اس کی ذمہ داری صرف مسجد کی حد تک نہیں رہتی، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ محلے کے تمام افراد کی فکر کریں۔ آپ اس حد تک ذمہ دار بن جائیں کہ اگر کوئی گاؤں میں بھوکا بھی سوتا ہے تو اس کی فکر امام کو ہونی چاہیے۔ جناب منور الزما نے موجودہ دور میں زبانوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ 90 سے 95% مسلم طلبہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان میں اکثریت دین سے دور ہے، لہٰذا علماء اس کام کو اس وقت انجام دے سکتے ہیں جب ان کی زبانوں میں انہیں دینی پیغام دیا جائے، جس کے لیے ہمیں زبانوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا اور خصوصاً انگریزی زبان میں ہمیں مہارت حاصل کرتے ہوئے دعوت فریضہ انجام دینا ہوگا۔ انہوں نے اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ہمیں ان کے کارناموں کو نئی نسل کے سامنے لاتے ہوئے انہیں ان سے واقف کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ ملحوظ رہے کہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہونے والی اس نشست میں مہمانوں کا تعارف محتم جامعہ مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی نے کیا، انہی کی دعائے کلمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ مذکورہ مہمان محتم جامعہ اسلامیہ مولانا مقبول کوبٹی ندوی کے ساتھ کل عصر بعد دفتر فکر و خبر پہنچے اور یہاں کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈیٹر مولانا انصار عزیز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر ایڈیٹر فکر و خبر نے مہمانوں کے سامنے ادارے کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ علماء کی زیر سرپرستی چلنے والا ادارہ اپنے 3.5 سال مکمل کر چکا ہے اور اس دوران الحمدللہ صحافتی میدان میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ فکر و خبر کے اردو، انگریزی اور کنڑا ویب سائٹس چل رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں اور زبانوں میں ادارہ قدم رکھے گا۔ اس سلسلے میں کئی منصوبے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے قدم بقدم روب عمل لائے جا رہے ہیں۔ ایڈیٹر صاحب نے مہمانوں کے سامنے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ فکر و خبر کو سیٹلائٹ چینل میں تبدیل کرنے اور صحافت کو تعمیری رخ دینے کے عزم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کام بھی انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ ایڈیٹر صاحب نے اس موقع پر فکر و خبر ڈیلی ویڈیو نیوز اور خصوصی پروگرام سیدھی بات اور صدائے حرا کا بھی تعارف مہمانوں کے سامنے رکھا۔ مہمانوں نے کوششوں کو سراہتے ہوئے اس میدان میں مزید ترقی کرنے کی بات کہی اور ادارے کو دعاؤں سے نوازا۔ کاسرگوڑ 5 کروڑ 26 لاکھ کے ڈکیتی معاملے میں تحقیقات کر رہی پولیس ٹیم کی جانب سے ایک فٹ بال کھلاڑی کو گرفتار کر لے جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بقیہ 9 مشتبہ ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ حراست میں لیے گئے ملزم کی شناخت مردورل عمر 23 مقیم طالب اور پمبا کنور کے حیثیت سے کر لی گئی جو ایرناکولم فٹ بال کلب کا کھلاڑی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مہاراشٹر سے کیرلا حوالے کی رقم لے جانے کے دوران مردل اور اس کے دوستوں نے کار کا پیچھا کرتے ہوئے اس میں موجود 6 کروڑ 26 لاکھ روپے لوٹ لیے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حوالے کی رقم جس کار کے ذریعے لی جا رہی تھی اس کا ڈرائیور راجیش بھی مشتبہ ملزمین کی فہرست میں شامل ہے۔ ذرائع سے فکر و خبر کو ملی تفصیلات کے مطابق 6 اگست کو مردل اور ٹٹو فٹ بال کھیلنے کے بعد آپس میں غیر متوقع دولت کمانے کے سلسلے میں بات چیت کرنے لگے۔ اس
दौरान उन्होंने सोचा कि इसके लिए सबसे आसान तरीका हवाले की रकम पर डकैती की वारदात अंजाम देना है, जिसके सिलसिले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने से हर एक कतराता है और इस तरह हम इस रकम को आसानी से लूट कर पुलिस के शिकंजे से भी दूर रह सकते हैं। उन्होंने अपने इस मंसूबे से ब्रिजेश नामी शख्स को आगाह किया, जो महाराष्ट्र के मुकीम लहतम विकास वहन्नू नामी सोने के ताजर के यहाँ ड्राइविंग का काम किया करता है। इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए ब्रिजेश ने अपने साथियों को इसकी इत्तला दी। 7 अगस्त को एयरटेगा कार के जरिए हवाले की रकम महाराष्ट्र से केरला मुंतकिल की जाएगी और इस वक्त सिर्फ धन्नू के असिस्टेंट गणेश ही कार पर सवार होंगे। मंसूबे के तहत मुश्तबा मुलजिमीन तल्लापाड़ी के करीब रिट्स कार में एर्टिगा कार का इंतजार करने लगे। इस दौरान जैसे ही एर्टिगा कार तेलापाड़ी से गुजरती तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और तेक्कल नामी जगह पर जाकर रिट्स कार ने एर्टिगा कार को पीछे से टक्कर मार दी और फौरी तौर पर कार से उतरते हुए गणेश के सर पर बंदूक रख दी और उसे धमकी देते हुए कार पर मौजूद तमाम रकम लूट ली। 7 अगस्त को मंजर-ए-आम पर आई इस वारदात के सिलसिले में 20 अगस्त को पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख की रकम लूट लिए जाने की बात कही गई थी। तहकीकात कर रही पुलिस टीम ने मर्दोल को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस ने सामने मज़कूरा खुलासा करते हुए कहा कि कार पर 5 करोड़ 26 लाख की रकम थी, जिसको उसने अपने साथियों के साथ लूट लिया था। पुलिस इस पूरे मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही है। नई दिल्ली देहरादून एयरपोर्ट पर रॉबर्ट वड्रा के साथ बीजेपी मेंबर असेंबली गणेश जोशी, जो कि शक्तिमान घोड़े को जख्मी करने वाले थे, के दरमियान झड़प हो गई है। रॉबर्ट वड्रा के करीबी लोगों के मुताबिक अपने बेटे को सालगिरह की मुबारकबाद देने रॉबर्ट देहरादून गए थे और गणेश जोशी किसी बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट का इस्तकबाल करने के लिए पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रॉबर्ट को देखकर जोशी फूल देने उनके पास पहुंचे, तभी रॉबर्ट को सिक्योरिटी ने बताया कि ये वही गणेश जोशी है जिस पर शक्तिमान घोड़े को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। सुनकर रॉबर्ट ने उनसे फूल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि शक्तिमान की जान लेने वाले से वो फूल नहीं ले सकते। इसी बात पर जोशी भड़क गए और अपने हामियों के साथ नारेबाजी करने लगे। इस पर रॉबर्ट ने कहा, बेज़बान शक्तिमान घोड़ा तो बेचारा बोल नहीं सका, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा। हंगामा बढ़ने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने गणेश जोशी और उसके हामियों को एयरपोर्ट के बाहर कर दिया। तब कहीं जाकर रॉबर्ट अपने बेटे से मिलने के लिए रवाना हो पाए। भोपाल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान की जहन्नम होने से मुतालिक बयान के लिए वजीर दिफा मनोहर पारिकर की शदीद तनकीद की और सवाल किया कि पारिकर ने इस वक्त एतराज़ किया क्यों नहीं किया जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सीनियर बीजेपी लीडरान लालकृष्ण आडवाणी ने पड़ोसी मुल्क का सफ़र किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जब पाकिस्तान गए थे तब वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर को पाकिस्तान का मुआवजना जहन्नम से करना चाहिए था। दिग्विजय ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एक लवाहिकीन की शादी में शरीक होने के लिए नामनहाद जहन्नम जिसे पाकिस्तान गए थे तब उनको यानी पारिकर को कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि पारिकर ने पाकिस्तान को जहन्नम करार देते एक मशहूर बयान दिया, लेकिन जब नवाज शरीफ की कुंबी की एक शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए वज़ीर आज़म वहाँ गए तो उस वक्त उनको कोई एतराज़ नहीं था। सिंह ने कहा कि उन्हें इस वक्त भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था जब लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को सेकुलर लीडर करार दिया था, उनके मज़ार पर गए थे। उन्हें इस वक्त भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे। उन्होंने कहा कि जब सीनियर लीडर पाकिस्तान गए तो उस वक्त पारिकर ने अपनी पार्टी के अंदर उसे क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का मुआवजना जहन्नम से करने के पारिकर के बयान की शदीद मजम्मत करती है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के सिलसिले में पारिकर के बयान और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बारे में उनके तबसरे से बीजेपी और आरएसएस लीडरों की आदमी बर्दाश्त अक्कासी महसूस होती है। दुबई शामी शहर हलब पर बशर अल असद हुकूमत के धमाकाखेज़ मवाद हमलों के बाद सामने आने वाली तस्वीर में शामी नौहालों के चेहरे मिट्टी से इसी तरह आटे नज़र आ रहे हैं जैसा चंद रोज़ कबल इसी शहर में शामी बमबारी से तबाह होने वाले मकान से ज़िंदा बचने वाले बच्चे उमरान की तस्वीर ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया था। दुनिया अभी उमरान और उसके दीगर अहल खाना की अपनी तबाहशुदा घर के मलबे से ज़ख्मी हालत में ज़िंदा बच निकलने वाली तस्वीर का गम नहीं भूली थी कि शामी हुकूमत ने हलब शहर के इलाके बाबुन्नैरब में 2 बैरल बम हमलों से ऐसी ही खूनी तारीख दोबारा रकम कर दी। ये इलाका शामी अपोजिशन के ज़ेर-ए-नगी बताया जाता है। हफ्ते को होने वाले बैरल बम हमलों में कम से कम 15 अफराद जाँ बहक हुए जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए। हलब शहर पर यह हमले चंद ही मिनटों के तवक्कुफ़ के बाद एक के बाद दीगरे किए गए। इंसानी हुकूक़ के शामी मॉनिटरिंग ग्रुप के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि शामी हुकूमत ने बाबुन्नैरब की नवाही कॉलोनी अल-माआदिम में एक ताज़ियती ख़ीमे पर बैरल बम हमला किया। जो ही अहले खाला और एम्बुलेंस सर्विस के अफराद जाए हादसे की मदद को पहुँचे तो दूसरा बैरल बम हमला कर दिया गया जिससे कम से कम 15 शहरी जाँ बहक और बड़ी तादाद में दूसरे ज़ख्मी हुए हैं। रामी अब्दुर्रहमान के मुताबिक ताज़ियती ख़ीमा बाबुन्नैरब पर ही जुमेरात के रोज़ किए जाने वाले बैरल बम हमले में 11 अफराद की हलाकत पर ताज़ियत के लिए लगाया गया था। रियाद
सऊदी अरब में शोबे दावत व इरशाद की मसाई जमीला के नतीजे में मज़ीद 32 अफराद राह हिदायत पर आ गए हैं और इस्लाम कबूल कर लिया है। इस मौके पर नौ मुस्लिमों के इस्लाम और ईमान की सलामती की दुआ की गई। उन्हें तहाइफ में इस्लामी कुतुब और इस्लाम से मुतालिक लिटरेचर भी तकसीम किए गए। मरकज़ दावत व इरशाद के दौरे के दौरान शेख फैसल अल अंजी को इदारे की दावती व तबलीगी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। अरब टीवी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रियाद में दावत इरशाद मरकज़ के डायरेक्टर शेख फैसल बिन अल अंजी की मौजूदगी में 32 गैर मुस्लिमों ने कलिमा तैयबा पढ़कर कबूल इस्लाम का ऐलान किया। इस मौके पर नौ मुस्लिमों के इस्लाम और ईमान की सलामती की दुआ की गई। उन्हें तहाइफ में इस्लामी कुतुब और इस्लाम से मुतालिक लिटरेचर भी तकसीम किए गए। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।